کوئی اگر روزہ رمضان کا نہیں رکھتا ہے اس کو موت آئے گی تو بتائیں کتنی بھیانک موت آئے گی۔ اس وجہ سے دنیا کے سارے دوست یہی رہ جائیں گے، آپ کو قبر میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ آپ کی نمازیں کام آئے گی۔ گناہوں سے توبہ کرتے تھے، گناہوں کو یاد کرتے تھے اور اس طرح چیخ مارتے تھے کہ ان کی روح نکل جاتی تھی۔ اب سنیں لوگوں، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کو قبر میں کیا کام آئے گی۔ آج تو نوجوان دوستی اس سے کرتے گئے، لیکن آج کی محفل میں معین الدین قادری پہلا پیغام دے گا، ذرا غور سے سنیے گا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، صحابی کچھ حاضر تھے، حضور نے فرمایا اے میرے صحابیوں ذرا یہ بتاؤ، ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے، یعنی وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، یعنی آخری وقت اس کا دنیا میں ہے، اس کے بعد کچھ دنوں کا مہمان ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ مرنے والے کے 3 بھائی ہیں، ذرا اونچا بولے کتنے بھائی؟ 3 بھائی۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضور نے فرمایا ہے اے میرے صحابیوں ایک بات بتاؤ، ایک شخص کا انتقال ہونے والا ہے، وہ کچھ دنوں کا مہمان دنیا میں گئے، اس مرنے والے کے 3 بھائی گئے۔ سب سے پہلے وہ بڑے بھائی کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے او میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، آپ تو میرے بڑے بھائی ہو، میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ بتاؤ کہ آپ کا میرے ساتھ کیا رویہ ہوگا، آپ کا میرے ساتھ کیا، آپ کا یعنی آپ کا تیور کیا ہوگا، آپ میرے ساتھ کیا معاملات کریں گے؟ تو سنیں وہ بڑا بھائی کہنے لگا اس سے جس کا انتقال ہونے والا ہے، بڑا بھائی کہنے لگا او میرا بھائی میں تو دنیا سے میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، تم بھی مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، لیکن سنو جب تک تم دنیا میں زندہ ہو میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارے دکھ سکھ میں ساتھ کھڑا ہوں، لیکن جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہیں لوگ قبرستان کی طرف لے جائیں گے اور میرا راستہ دوسری طرف ہو جائے گا۔ سنیے گا، مرنے والے کے کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں۔ جس شخص کا انتقال ہونے والا کچھ دنوں کا مہمان ہے، آپ بھی جاتے ہیں نا عیادت کے لیے، پوچھنے کے لیے جاتے ہیں نا۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں، اس کی عیادت کے لیے جایا کریں، اس کی دیکھ بھال کرنے جایا کریں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو کسی بیمار شخص کو دیکھنے گھر سے جاتا ہے، جتنا قدم گھر سے لے کر اس بیمار کے گھر تک جاتا ہے اور واپسی میں جتنے قدم گھر کو آتا ہے، ہر قدم پہ وہ جنت کے پھولوں کو چومتا ہوا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہ شخص مرنے والا ہے، پہلے بھائی کو بلایا، بڑا بھائی کو، بھائی میرے یہ بتاؤ میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ بتاؤ میرے انتقال کے بعد تمہارا کیا معاملہ رہے گا میرے ساتھ، تو کیا میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا رویہ رہے گا؟ اس بھائی نے کہا، کیا کہا؟ جب تک زندہ ہے آپ سے میرا تعلق ہے میرے بھائی، لیکن جیسے انتقال ہوگا آپ کو لوگ قبرستان لے کر جائیں گے اور میں تو بازار کی طرف چلا جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا او میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ ایسے بھائی سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے؟ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا کوئی بھائی دنیا میں ہوگا اگر کوئی اس طرح سوارتھی ہو، اس طریقے سے اگر وہ بیہیو کرتا ہو، اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہو، ایسے بھائی سے مرنے کے بعد کیا جیتے جی ناتا توڑ دینا چاہیے، کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اتنا بڑا ظالم کوئی بھائی ہوگا جو کہتا ہے جب تک زندہ گئے وہ ساتھ کھڑا رہے گا، جیسے ہی انتقال ہوگا اس کو لوگ قبرستان لے کر جائیں گے لیکن وہ دوسری طرف چلا جائے گا۔ حضور نے فرمایا صحابی ابھی بس نہیں ہوا، اپنے دوسرے بھائی کو مرنے والے نے بلایا جس کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہونے والا ہو،
वो दूसरे को बुलाया और बुला कर कहने लगा, ओ मेरा भाई ये बताओ, मैं तो चंद दिन का मेहमान हूँ, हकीमों ने लाइलाज कर दिया गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया गया, ये बताओ अगर मैं दुनिया से चला जाऊंगा, दुनिया में तो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हो, मेरे इंतकाल के बाद तुम्हारा रवैया कैसा रहेगा? तो दूसरा भाई जवाब दिया तो ओ मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा हो आप भी मोहब्बत करते हो, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ओ मेरा भाई जब आपका इंतकाल हो जाएगा तो आपको जब लोग कब्रिस्तान के लिए रवाना करना चाहेंगे, मैं मौत के वक्त भी आपके बगल में खड़ा रहूंगा। जब आपका इंतकाल हो जाएगा आपको मैं अपने हाथों से गुस्ल भी दूंगा, कफन भी पहनाऊंगा, जब जनाजे की नमाज होगी मैं आपकी नमाजे जनाजा भी अदा करूंगा, और जब लोग आपको कब्र में उतारेंगे मैं भी आपको कब्र में उतारूंगा, लेकिन जैसे मिट्टी दे देंगे, मिट्टी देने के बाद जैसे गांव और मोहल्ले वाले सब घर को लौटेंगे, मैं भी उनके साथ अपने घर को वापस आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, सुनिए हुजूर फरमाते हैं, ये बताओ सहाबी इस दूसरे भाई के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कम से कम ये पहले से तो बेहतर है, पहला तो कह रहा था जैसे ही इंतकाल होगा मुझे आपको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, मैं इधर दूसरे रास्ते पे चला जाऊंगा, लेकिन दूसरा तो कम से कम इतना है, गुस्ल भी देगा, कफन भी पहनाएगा, नमाजे जनाजा भी अदा करेगा, मिट्टी भी देगा, जब सब लोग आएंगे तब वो वापस आएगा। हुजूर ने फरमाया इसके साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह पहले से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, दूसरे भाई से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अब आखिरी भाई को सबसे छोटे वाले को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, दो ने तो इतना जवाब दिया है, पहले ने तो हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि जब आपका इंतकाल होगा आपको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, मैं इधर चला जाऊंगा दूसरे रास्ते पे। दूसरे ने कहा कम से कम वो मिट्टी देते वक्त साथ रहेगा, कफन के वक्त साथ रहेगा, कफन देगा, नमाजे जनाजा पढ़ेगा, गुस्ल देगा। तीसरे ने कहा, ओ मेरा भाई, मैं तो तेरा वो भाई हो जिससे तू खुद प्यार करता है और मुझे तूने जिंदगी में कभी नहीं भूला, तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैं तो उन दोनों से हट के काम करूंगा। कहा क्या करेगा? कहा के ओ मेरा भाई, जब तक जिंदा है आप मेरा साथ देते हो, आप मेरा ख्याल करते हो, लेकिन जब आपका इंतकाल हो जाएगा मौत के वक्त भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, जब आपको लोग कफन देंगे तब भी साथ रहूंगा, गुस्ल देंगे तब भी साथ रहूंगा, जनाजे के वक्त साथ रहूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा। लोग जब आपको कब्र में तन्हा छोड़कर आ जाएंगे, सारे लोग लौट कर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ आपकी कब्र के अंदर जाकर रोशनी का इंतजाम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया, सहाबियों ये बताओ तीसरे भाई के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी क्या सोच है? सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अब तो मेरा दिल चाहता है पहले दोनों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तीसरे से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। अब हुजूर ने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनिएगा। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरा सहाबी सुनो सुनो, मैं तो तुम्हें मिसाल के जरिए समझाना चाह रहा था। पहले भाई से मुराद वो कोई दुनियावी भाई नहीं है, बल्कि पहले भाई से मुराद वो तुम्हारा मकान है, वो तुम्हारी दौलत है, वो तुम्हारी दुकान है, वो तुम्हारी जमीन है, वो तुम्हारी जायदाद है, वो तुम्हारे रुपए पैसे है। जब तक तू जिंदा है तेरा मकान तेरे साथ है, जब तक तू जिंदा
जिंदा है उस दौलत का मालिक तू है, जब तक तू जिंदा है इस जमीन का मालिक तू है, जब तक तेरी सांसें चल रही है इस दुकान का मालिक तू है। लेकिन जैसे ही तेरा इंतकाल हो जाएगा लोग तुझे कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, लेकिन तेरी दौलत तेरी जायदाद दूसरे की तरफ चली जाएगी। पहले भाई से मुराद यही है। आज होता है कि नहीं होता है? बाप का जनाजा रखा रहता है, बेटे कहते हैं उस वक्त तक जनाजा नहीं उठेगा जब तक के जमीन का बंटवारा ना हो जाए, जब तक के मकान का बंटवारा ना हो जाए। उसी बेटे के लिए हमने गुनाह किया, उसी बेटे के लिए लोगों ने सूद खाया, उसी बेटे के लिए लोगों ने हराम की कमाई की है। जरा सुनिएगा, हुजूर ने फरमाया पहला तो ये है, दूसरे भाई से मुराद वो तुम्हारे दोस्त यार है, वो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार है, जिनके लिए तुम दिन रात एक कर देते हो। लेकिन सुनो सुनो, वो तुम्हारे रिश्तेदार, वो तेरे मोहल्ले वाले, वो तुम्हारे दोस्त यार, वो उस वक्त तक साथ रहेंगे जब तक जिंदा है तेरे साथ है। तेरा इंतकाल होगा गुस्ल के वक्त साथ रहेंगे, जनाजे में साथ रहेंगे, मिट्टी देते वक्त साथ रहेंगे। जब लोग वापस आएंगे तो तेरा सगा भाई भी कब्र के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि लोगों के साथ वो भी घर आ जाएगा। और तीसरे भाई से मुराद वो है जो मौत के वक्त भी साथ रहेगी, जनाजे में भी साथ रहेगी, कब्र के अंदर भी जाएगी। वो तेरी नमाज़ें है, वो तेरे रोजे है, वो तेरी ज़कात है, वो जो तूने मस्जिद में पैसे दिए गए, वो जो तूने मदरसे में ईंटें दी गए, वो जो तूने गरीब बच्चियों की शादी पे खर्च किया गया, वो सारी तेरी नेकियां होगी। जब कब्र की तन्हाई होगी, कब्र अंधेरी होगी, जहाँ कोई रोशनी काम न आएगी, उस वक्त ये आपकी नमाज है, ये मस्जिद में रकम देना, ये मदरसे में पैसे देना, ये गरीब बच्चियों की शादी में खर्च कर देना, यही नेकियां आपकी रहेगी जो आपकी कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसलिए किसी नेकी को कम मत समझिए। एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हुआ। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे आप जिंदा हैं, अल्लाह ताला 90 नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? बोले कितनी नेकियां? 90 नेकियां। पूरा मजमा बोले कितनी नेकियां? अच्छा एक मंत्र सुना दें? जी जी बिल्कुल। बोलो ना भाई, सुना दें? जी जी जी। एक सुना देते हैं, वरना तो भाई आप लोगों को, जो लोग इधर आके सामने बैठिए ना भाई, आप बैठेंगे मोइनुद्दीन कादरी ऐसी तकरीर कर देगा कई बरसों तक याद रखेंगे इंशाअल्लाह। बस बैठ जाएं, मैंने अभी तक किसी को कुछ कहा नहीं है, बस आप बैठ जाएं। मैं आज अलग तेवर में हूँ और इस्लाम मुआशरा मैंने नाम सुना है तो मैंने सोचा है ऐसी गुफ्तगू हो जाए कि आप कई बरसों तक इसे याद रखें और इस पर अमल भी करें। कमेटी वालों की बड़ी मोहब्बत है, जिसके घर में इंतजाम है बड़ा अच्छा, उन्होंने खाना भी खिलाया, इज्जत भी किया, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है इस महफिल को सजाने में या मस्जिद में, अल्लाह ताला सबों को इसका अजर दुनिया में भी अता फरमाए, आखिरत में भी अजर अजीम अता फरमाए। एक मंत्र सुना देता हूँ, सुना दें? ऐसे नहीं, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा पढ़ूंगा जिसमें आप सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी, अरबन मदनी, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी, अरबन मदनी, और कल्याण करो मोरा के कल्याणी, अरबन मदनी, अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत गए मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज
चलत है मंडल मंडल और संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी और या रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर मिला, सम्मान मिला है और हृदय से तुमरे है आभारी अरबन मदनी कल्याण करो मोरा के कल्याणी अरबन मदनी असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति प्रकाशम अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाभ पुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रखत सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान और जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, अरे तू जानगी है महान रे मोरख, तू जानगी है महान, तू जानगी है महान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने हाट बंगरा, नारे तकबीर। हमने ये शेर पढ़ा है, जरा गौर से सुनिएगा। हमने कहा है या रसूल अल्लाह बिनती है कर दो मंगल, इसको अगर अरबी में पढ़ा जाए हमारे उलमा कहेंगे इसमें अरबी, इसका अरबी में अर्थ ये होगा या रसूल अल्लाह के उनजुर हालना या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना इन्ननी फी बहरी गम मुगरकुन खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, यानी मतलब ये है हम यहाँ जितने लोग बैठे गए इस अकीदे के साथ बैठे गए, इस नीयत से बैठे गए, काश आका का यहाँ से गुजर हो जाए और नजरे करम हो जाए तो दुनिया में रहे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं बताऊंगा, अगला शेर ये था, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। जरा गौर से सुनिएगा, अगर आपने मेरा जहन बनाया मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा निकाल कर रख देगा, क्योंकि लोगों यहाँ जितने लोग बैठे गए वो तो ये अकीदा लेकर बैठे गए, काश हुजूर की महफिल में या रसूल अल्लाह कहते कहते मौत आ जाए तो जिंदगी में भी कामयाब हो जाए, कब्र में भी बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह। हर आशिक यही कहता है तंजील भाई, हर आशिक कहता है ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। जरा वो लोग जो चबूतरे पे बैठे हैं, पंचायत भवन है क्या है हवा भवन ही होगा, हवा खाने से ज्यादा लोग ऐसी जगह पे दूसरों की हवा टाइट करते हैं। हाँ, ऐसी जगह पे आप देखिएगा 8-10 लड़के बैठे रहते हैं, हाँ, वो दूसरों की हवा टाइट करने में लगे रहते हैं। हाँ, जितने लोग बैठे हैं आप इधर उधर की महफिल नहीं, बल्कि वो जगह भी खुश नसीब है जहाँ मेरे मुस्तफा का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो
اچھا ہے اسلام کا تم سے گیان ملا. یاد رکھنا لوگوں اگر کوئی حضور کی ایک ایک بات پہ عمل کرنا شروع کر دے اللہ کی قسم کہتا ہو اگرچہ وہ تھوڑا کمائے گا اگرچہ ان کے بیٹے کم ہوں گے اگرچہ انکم کم ہوگی لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی حضور کی باتوں پر عمل کر لے گا تھوڑی سی دولت میں بھی اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا حضور نے جو پیغام دیا سنیے گا. آج حضرت ہوتا یہ ہے 5 بیٹے ہیں کسی کے وہ بھی ہمارے پاس تعویذ لینے آتا ہے. آپ امام صاحب ہیں آپ بخوبی جانتے ہوں گے جن کے 5 بیٹے باہر کماتے ہیں کوئی ممبئی ہے کوئی دلی ہے کوئی ہریانہ ہے کوئی گجرات ہے کوئی حیدرآباد میں لیکن وہ بھی تعویذ لینے دوڑتا. حضرت پتہ نہیں پیسہ ادھر سے آتا ہے ادھر جاتا کدھر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. یاد رکھیے گا لوگوں دنیا والوں سے کسی بھی معاملہ کا حل مت ڈھونڈو اگر حل ڈھونڈنا ہے حضور کی حدیث میں ڈھونڈو. اللہ کی قسم کہتا ہو جو حضور کی حدیث پہ عمل کرے گا وہ نمک روٹی بھی کھائے گا اللہ تعالیٰ اسی میں اسے سکون کی دولت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے کیسے سنیے گا حضور کی ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے اور جو آج کی میری تقریر سن لے گا میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں 100 روپیہ کمائے گا اسی میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. 200 دن میں کمائے گا مہینے میں 5000 ہی کمائے گا لیکن اگر حضور کی حدیث پہ عمل کر لے گا اللہ اسی میں اسے سکون کی دولت عطا فرمائے گا. یہ میری بات نہیں سنے حضور نے فرمایا ہے جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا. یہ میری بات نہیں ہے بلکہ حضور کی بولی ہے. میری بات غلط ہو سکتی ہے مولانا مطیع الرحمان صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے تنزیل مائی کی بات غلط ہو سکتی ہے نقیب صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی معین الدین چترویدی صاحب قبلہ. آج پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے لیکن ہمارا اسلام اور قرآن سب سے آگے نظر آتا ہے. امریکہ اسلام کے پیچھے ہے برطانیہ قرآن کے پیچھے ہے انگلینڈ اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے یورپ و ایشیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے لیکن اللہ کا قرآن اور مذہب اسلام آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک حافظ قرآن کو دیکھیں گے ہمارا بیٹا 10 سال کا ہے 12 پارہ حفظ کر رہا ہے 12واں پارہ. حضرت کا کوئی اس علاقے میں بھی ہم نے دیکھا ہے 7 سال کے بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. اگر ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو دل مچل کے کہتا ہے پوری دنیا اسلام اور قرآن کے پیچھے ہے لیکن میرا اللہ کا قرآن اور مذہب اسلام سب سے آگے ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مچل کر کہتے ہیں صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیں حضور کی بولی غلط نہیں ہو سکتی ہے. کتنی باتیں حضور نے فرمایا کتنی باتوں پہ جو عمل کرے گا اللہ اس کو سکون کی دولت دے گا. 5 اونچا بولے پورا مجمع کتنی. میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جو جتنی آواز سے بول رہے ہیں اور جتنے بہتر انداز میں سن رہے ہیں انہیں اتنی جلدی مدینہ شریف میں حاضری نصیب. آمین یا رب العالمین. بھائی حضور کا مدینہ دیکھیں اگر اللہ نے دولت دیا ہے حضور کا مدینہ ضرور دیکھ کر آئیں.
कितनी बातें ऊंचा बोले? 5 बातें। 5 बातें। पहली बात सुनिए, अगर आपने गौर से सुना, स्टेज पे जितने उलमा तशरीफ फरमा गए, मैं इनकी दुआएं चाहूंगा। हुजूर ने फरमाया जो 5 बातों पर अमल करेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में सुकून की दौलत अता फरमा देगा। पहली बात सुनो लोगों, अगर कम कमाई में भी जिंदगी में सुकून चाहते हो, याद रखिएगा ज्यादा पैसे आ जाना इसमें सुकून नहीं है, वरना तो ज्यादा पैसे वालों को हमने रात में नींद की गोलियां खाते देखा है, आपने भी देखा होगा। हुजूर फरमाते गए पहली बात पे ये अमल करो, इत्तक़िल महारिमा तकुन आबदन नास। हुजूर ने फरमाया अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, हराम से बच जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपना प्यारा बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चीज से बचना है? हराम से। ऊंचा बोले, किससे बचना है? हराम से बचिए, वरना तो हजरत तंजील भाई आज होता यह है मामला, लोग अपने बच्चों के बारे में आगे सोचते हैं और ये सोचते हैं अगर मैं 1 बीघा जमीन अपने बेटे के लिए छोड़कर नहीं गया तो मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा। 3 मंजिला मकान अगर बच्चे के लिए नहीं बनवा कर गया तो मेरा बेटा आगे मकान कैसे बनाएगा। अगर मैं एक बड़ी सी गाड़ी नहीं खरीद कर दिया तो मेरा बेटा जिंदगी में गाड़ी खरीद पाएगा कि नहीं पाएगा। अब इस चक्कर में वो आदमी हराम करता है, झूठ बोलता है, सूद खाता है, सूद भरना जमीन लेता है। वो आपके इधर चलता है कि नहीं? यानी 3 लाख रुपए दे दिया, वो सूद भरना पे जमीन ले लिया, अब 10 साल उस जमीन पे हल चला चला के फसलें उगाएगा। याद रखिएगा सूद सबसे बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है अगर कोई सूद खाता है। हुजूर फरमाते हैं कि सूद खाने वाला ऐसा है जिस तरीके से कोई अपनी माँ से बदकारी करे 36 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं, 36 मरतबा कोई अगर अपनी सगी माँ से बदकारी करे, जितना गुनहगार वो शख्स है उससे बड़ा गुनहगार सूद खाने वाला है। इसलिए हराम की कमाई मत करिए, बल्कि याद रखें हमने तो देखा है जो बाप 70 साल में हराम का पैसा जमा करके जमीन खरीदा, मकान बनवा लिया, गाड़ी खरीद लिया, बंगला बना लिया, बड़ी सी दुकान गोला खोल दिया, लेकिन वो जब मर जाता है उसके बाद उसका बेटा 5 साल उसके मरने के नहीं होते गए कि सारी दौलत बेचकर उसका बेटा खा जाता है, वो शराब के नशे में धुत रहता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा ओ नौजवानों, जो भी नशे का आदी हो वो नशा करना छोड़ दो। मेरी बातें सुनकर अगर नशा नहीं छोड़ते हो, मैं नहीं कहता कि छोड़ दो, लेकिन हजरत की बात जुमा जुमा को तुम सुनते होगे। ओ नौजवानों, कभी तुम हजरत मौलाना तंजीलुर रहमान की बात सुनते होगे, कभी अपनी मस्जिद के इमाम साहब से सुनते होगे कि लोगों शराब मत पियो, नशा मत करो, लेकिन याद रखो हमारी तकरीर या इमामों की तकरीर को सुनकर अगर शराब नहीं छोड़े हो, एक बात याद रखना, यहाँ से उठ के घर जाना, जरा तकिया पे सर रख कर सोचना, रात को यहाँ से उठ के जब जाओगे तकिया पे सर रख कर सोचना, तू शराब पीता गए, तू नशा करता गए, तू गांजा पीता गए, अगर तेरी मौत शराब पीते पीते हो गई। हमारे यहाँ हजरत ऐसा मामला हुआ, एक ऐसा नौजवान लड़का जो 3 बच्चे का बाप है और तीनों उनकी बेटियां गए, वो इतना बड़ा शराबी था, वो इतना बड़ा शराबी था कि रमजान जैसे पवित्र महीने में भी वो शराब नहीं छोड़ता था। इस इलाके में भी बहुत सारे ऐसे शराबी होंगे जिनको न रमजान नजर आता होगा, न जुमा नजर आता होगा। याद रखना वो इतना बड़ा शराबी था, उसके गुर्दे खराब हो गए। 10 कट्ठा जमीन का मालिक था, वो जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टरों ने कहा कि तेरा गुर्दा खराब हो गया है, तुम्हें 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख की जमीन बेचा,
وہ ہاسپٹل میں جا کر علاج کروایا، 10 کٹھا زمین بھی بک گئی، 10 لاکھ روپے بھی چلے گئے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ آج ان کی بیوی کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے بچوں کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ لے جانے والا نہیں ہے۔ او نوجوانوں، مولانا کی تقریر کو سن کر اگر شراب نہیں چھوڑے ہو، کم سے کم تکیہ پہ سر رکھ کر سوچنا گھر جا کر، اگر جوانی میں تیرے شراب پیتے پیتے اگر گردے خراب ہو گئے، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ او بھائی، ہم نے تو یہاں تک دیکھا گیا جس دن کسی نوجوان کا انتقال ہوتا گیا، اس کا چھوٹا یا بڑا بھائی دوڑ کر بچوں کے پاس آتا گیا، لوگوں کے سامنے کلیجے سے لگا لیتا گیا اور کہتا گیا، او محلے والوں، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ میں اس کا باپ بن کر دکھاؤں گا، ایک باپ کی طرح پیار دوں گا۔ لیکن سچ بتائیے گا، یہ چچا کی محبت بھتیجا بھتیجی کے لیے کتنے دنوں تک رہتی ہے؟ جب تک چہارم نہ ہو جائے، جب تک 40واں نہ ہو جائے، تبھی تک چچا کی محبت رہتی ہے۔ چہارم 40واں کے بعد وہی چچا اتنا بڑا دشمن ان بھتیجوں کا بنتا ہے کہ محلے والے کہتے گئے، ارے کوئی چچا بھی اتنا بڑا دشمن نکلے گا بھتیجے کا، کس کے انتظار میں ہو؟ یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہے، کوئی تیرے بچوں کی انگلی کو تھامنے والا نہیں ہوگا، تیری بیوی کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے، کوئی تیرے بچوں کا دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں، جلسہ سننے کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی نوجوان شراب پیتا ہے یا گانجا پیتا ہے یا اگر کوئی نشہ میں ملوث ہے، اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سنتے ہوئے چلتا ہے، ایسے لوگوں سے میں کہوں گا، او نوجوانوں، ارے تمہیں تو اپنی بیوی کی عزت کو سنبھالنے والا شوہر بن کر رہنا ہے، تمہیں بچوں کی پرورش کرنے والا، بچوں کو کامیاب انسان بنانے والا باپ بن کر دنیا میں آگے بڑھنا ہے، تمہیں تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی بننی ہے۔ اس لیے جلسے میں آئے ہو، یہی ایک پیغام اگر لے کر چلے جاؤ، عمل کر لینا، اللہ کی قسم کہتا ہوں، یہ اس پہ اگر اب آپ عمل کر لو گے، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے، کل سے کوئی شراب کو ہاتھ نہ لگائے، میری خاطر نہ صحیح، کم سے کم چھوٹے چھوٹے بچوں کا چہرہ دیکھ لینا، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لینا۔ اگر تو ایک دن عید کے دن گھر میں نہیں ہوتا ہے، اگر دلی میں کام کرتا ہے، ہم نے مزدوروں کو حضرت عید کے دن روتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے اگر پوچھیں عید کے دن کیوں روتے ہو، آج تو خوشی کا دن ہے، وہ مزدور رو رو کر کہتا ہے، اے پاک پروردگار عالم، تو نے مجھے غریب بنایا ہے، تبھی تو عید جیسے مبارک دن میں آج دلی میں کام پہ لگا ہوا ہو، میرے بچے پتہ نہیں دوسروں کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ جاتے ہوں گے، آج میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سال میں ایک دن عید کے دن اگر باہر رہتے ہو، یہ پتا ہے کہ اگر زندگی وفا کرے گی تو میں گھر جاؤں گا اگلے سال عید میں، لیکن کتنا تڑپتے ہو۔ اگر تم دنیا ہی سے چلے گئے شراب پیتے پیتے، تو سچ بتاؤ تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ بوڑھے ماں باپ ماں کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، لیکن کوئی بوڑھا باپ اگر جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بوڑھی ماں کا جنازہ اٹھانا آسان ہے، لیکن اگر بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو گھر میں پڑی دیکھتی ہے تو بوڑھی ماں کو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میری تقریر کی وجہ سے نہ صحیح، علماء کے بیان کی وجہ سے نہ صحیح، کم سے کم شراب سے اپنے بچوں بیوی ماں باپ کی خاطر توبہ کر لینا اور یہاں سے اٹھ کر جانا۔ کل سے اگر گاڑی چلانا شراب کے نشے میں نہ چلانا، میوزک سنتے ہوئے نہ چلنا، بلکہ اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے، موت بھی آ جائے، تو زبان پہ شراب کے ناپاک قطرے نہ ہو اور کانوں میں میوزک نہ ہو، بلکہ زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुईनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह। इस मजमे में देखना चाहता हूँ, मैं दुआ करूंगा उनके लिए। कोई एक नौजवान है जो ये कहता, मैं तो ये नहीं कहता कि शराब पीने वाला खड़ा हो जाए, मैं ये नहीं कहता, क्यों, गुनाह को ऐलान करना गुनाह का भी गुनाह है। आज लोग फख्र करते हैं और कहते हैं मैंने फलां जगह बदकारी किया, मैंने फलां जगह गुनाह किया, गुनाह का तज़किरा करते हैं। याद रखिए, गुनाह अगर हो गया है तो गुनाह का तज़किरा मत कीजिए, बल्कि ये सोचिए कि मालिक जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों पर पर्दा डाला है, आखिरत में भी मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल देना। ये इरादा रखिए। गुनाहों का तज़किरा चार नौजवानों में मत कीजिए। है कोई नौजवान एक खड़ा हो जो ये कहे कि हजरत मैं अब तक तो गुटखा वगैरह खाता था, लेकिन आज के बाद आपकी तकरीर मैंने सुना है, अपने बच्चों या अपने बूढ़े माँ बाप की खातिर मैं आज के बाद गुटखा को हाथ नहीं लगाऊंगा। कोई एक नौजवान, इसमें 100 लोगों में से तो भाई आजकल 50 लोग गुटखा खा रहे हैं, क्या लेकर दुनिया से जाएंगे? एक नौजवान है, कोई एक नौजवान जो इरादा करे कि मैं कभी नहीं खाऊंगा गुटखा, एक नौजवान कोई खड़ा हो जाए, एक खड़ा हो जाओ कोई, मैं दुआ करूंगा उनके लिए, ये उलमा गवाह हो जाएंगे। अगर ये उलमा मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, अल्लाह ताला खूब बरकतों का नुज़ूल अता फरमा देगा। शर्म आती है हजरत, शर्म आती है। आज जानते हैं छोटे छोटे बच्चों को इस इलाके में देखता हूँ, वो बीड़ी पीता है, बीड़ी पीता है। अच्छा, क्यों नहीं बिगड़ेगा? पहले होता था क्या हजरत? पहले सुनिए, पहले होता ये था, नहीं उसमें भी खराबी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ उसमें भी खराबी है। मत खाइए, मत खाइए, जिंदगी बहुत कीमती है। और एक बात सुनिए, अगर एक चीज फेल हो जाए ना, अगर एक चीज फेल हो जाए, अभी हमारे गांव में ये हकीकत वाकया हजरत, मैं माइक पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड होता है। हमारे गांव में एक शख्स है, उनका लीवर खराब हो गया, उसकी बीवी का लीवर 25% काट के उसके लीवर में सेट किया है। तो जानते हैं उस दिन का बयान है, उन्होंने कहा हजरत 42 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। लीवर दूसरे का नहीं, बल्कि लीवर बीवी दी है, बीवी का लीवर काटकर उसके पेट में या अंदर में सेट किया है, उसका लीवर सड़ गया था। 42 लाख खर्च हो चुके हैं, अभी भी उसे होश मुकम्मल तौर पे नहीं है। अब बताएं, इसलिए मेरे भाइयों तौबा करो। सारे लोग हाथों को उठाकर बताइए, इंशाअल्लाह आज के बाद ऐसे गुनाह नहीं होंगे। अरे भाई ऐसे भी तौबा करने चाहिए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। हाँ, जरा सुनिएगा, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले, शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, न लगाए थे न लगाएंगे, कभी भी नशा की तरफ नहीं जाएंगे, वरना तो भाई साहब बिहार में नशा बंद है। सबसे ज्यादा दिखे टल्ली सब यही घूमता है। हाँ, सबसे ज्यादा कभी इस वीडियो में, कभी उस वीडियो में, कभी उस वीडियो में, कभी उस वीडियो में। जरा सुने लोगों, हराम न खाए, हराम न कमाए, हुजूर ने फरमाया जो कितनी बातों पर अमल करेगा, ऊंचा बोले कितनी बातों पे, पूरा मजमा इधर है, नौजवान छपरा कितनी बातों पे, 5 बातों, ऊंचा बोलो। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हाँ, ये बोलो कितनी बातों पे, 5 बातों पे जो अमल करेगा। पहली बात ये इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास, जो हराम से बच जाए अल्लाह ताला उसे अपना प्यारा बंदा बना लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जो लोग ये सोचते हैं ना कि बेटों के लिए अगर नहीं हराम की कमाई जमा कर दो, मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा, वो ये सोचिए हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। हराम की अगर 10 बीघा जमीन छोड़कर चले जाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि उसमें बरकत अल्लाह दे दे, लेकिन हलाल का एक कमरा, एक झोपड़ी ही बच्चे के लिए छोड़कर अगर गए, अल्लाह ताला उसी में बरकत देगा। आपके बच्चे को अल्लाह मालदार भी बना देगा, नेकोकार भी बना देगा। आप कहेंगे कैसे? वो ये मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है। सुनिएगा, सुनेंगे थोड़ी देर गुफ्तगू, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिएगा, अच्छा इधर वाले सुन रहे हैं, सुनिएगा। कुरान में
अल्लाह ने फरमाया है, बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा गरीब था, मजदूरी करता था, कमजोर था। अचानक मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो गया। हकीमों ने लाइलाज कर दिया। डॉक्टरों ने कहा अब आप चंद दिन के मेहमान हैं, अपनी जो ख्वाहिश है बची कुची पूरी कर ले, आप दुनिया से चले जाएंगे। वो इंसान रोने लगा घर आकर, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी एक बीवी है, मेरा एक 8 साल का बच्चा है, मैं तो चला जाऊंगा। इनके लिए छोड़ कर जाने को कुछ नहीं है, बस एक गाय की बछिया है। गाय की बछिया, गाय की बछिया समझते हैं क्या बोलते हैं आप लोग? बाछी, बाछी ना? हाँ, गाय की बछिया थी। डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया कि अब चंद दिन के मेहमान हैं। उस बछिया की रस्सी को पकड़ा, जंगल में चला गया। जरा तवज्जो से सुनिएगा। जंगल में जाकर गाय की बछिया को लेकर खड़ा हो गया, दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, चंद दिन का मेहमान हो, मेरा एक 8 साल का बच्चा है, मैं जो दुनिया से जाऊंगा अपने बच्चे के लिए छोड़ कर जाने को कुछ भी नहीं है। अभी मेरा बेटा छोटा सा है, 8 साल का। ए मालिक, सिर्फ एक गाय की बछिया है, इस गाय की बछिया को मैं जंगल में छोड़ता हूँ, तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी अमानत में देता हूँ। ए पाक परवरदिगारे आलम, इस गाय की बछिया को तू अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरा बेटा जब जवान हो जाए, इस गाय की बछिया को मेरे बेटे को वापस फरमा देना। अल्लाह अकबर। जंगल में छोड़ दिया, घर आ गया। कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ ना, उसका बेटा कुछ दिनों के बाद बड़ा हुआ। वो बड़ा नेक बना उसका बेटा, इतना नेक बना, इतना नेक बना, इतना नेक बना कि दिन भर जाकर जंगल में लकड़ियां काटता था, उस लकड़ी के 3 हिस्से करता था, जाकर बाजार में बेचता था। जो पैसे आते थे उसके 3 हिस्से लगाता था। एक हिस्सा अपनी जरूरत को पूरी करता, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता, और आखिरी हिस्सा यानी तीसरा हिस्सा अपनी बूढ़ी माँ पर खर्च करता था। अल्लाह अकबर। बूढ़ी माँ पे खर्च करता था। लेकिन हालात ये नजरत, आज अगर माँ रोजाना 10 रुपए की दवा मांग ले तो बेटा नाराज हो जाता है। और कौन बेटा नाराज होता है? वो बेटा जो कव्वाल और कव्वाला के ऊपर जाकर 10,000 लुटा देता है। लुटा देता है। मैं कहूंगा ऐसे बेटों पे शर्म आती है। सुनता हूँ कि वो बेटा अजमेर जाकर 10,000 की चादर चढ़ाता है, बड़ी देग में 10,000, छोटी देग में 5,000 डाल के आता, मोच पे ताव देता है। हमने गरीब नवाज की चौखट पे हर साल जाके 10,000 की चादर चढ़ाया है। और जानते हैं, घर की बात जब आती है पता चलता है कि वो बेटा साल भर में अपनी माँ को एक साड़ी नहीं देता है, अपने बाप को एक लुंगी नहीं देता है। अरे कपड़े देने की बात छोड़ो भाई साहब, साल भर वो मुस्कुरा के बात तक नहीं करता है। अल्लाह अकबर। मैं कहूंगा आप क्या समझते हैं, क्या अगर माँ बाप आपके घर में आपसे नाराज होकर बैठे रहेंगे, बेटा उम्रा पे उम्रा करता रहे, क्या मुस्तफा राजी हो जाएंगे? हरगिज नहीं होंगे। क्या जिसके माँ बाप को जो कपड़ा न देता हो, गरीब नवाज की चौखट पे जाकर उनके मजार पे 10,000 की चादर चढ़ा दे, क्या गरीब नवाज राजी हो जाएंगे? कभी राजी नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो आपकी माँ राजी हो जाए, आपके बाप राजी हो जाए, तो याद रखना, गरीब नवाज को राजी करना चाहते हो, माँ बाप को घर में राजी कर लो, गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। बल्कि हदीस में आता है, हुजूर ने फरमाया कि जो बेटा या जो बेटी एक मर्तबा मोहब्बत से मुस्कुरा कर माँ का चेहरा देख लेता है, अल्लाह ताला उसे एक हज का सवाब अता फरमा देता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने हाट बंगरा। नारे तकबीर, नारे। सुनिएगा, क्या छोड़ा था जंगल में जाके? ऊंचा बोले।
बाछी बाछी हाँ छोड़ दिया। आया उसका बेटा जब बड़ा, वो तो इंतकाल कर गया, बेटा जब बड़ा हुआ बड़ा नेक बना। देखिए देखिए कहाँ जा रहे हो, जहाँ जाना जाओ। अभी हम वेद वगैरह सुनाएंगे, ऐसा थोड़ी है, जो पढ़े उसका खुलासा भी करेंगे और भी सुनाएंगे, लेकिन कुछ काम की बातें हो जाए पहले। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जितने मर्द बैठे हैं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा नेक बना, पैसों के 3 हिस्से करता, एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता, एक हिस्सा अपनी जरूरत को पूरी करता, एक हिस्सा अपनी माँ के ऊपर खर्च करता था। बड़ा नेक बना। घर के हालात जब ज्यादा बिगड़े, माँ कहने लगी ओ मेरा बेटा, ओ मेरा लाल, ऐसा करो, तेरे बाप ने जंगल में जाकर मौत से पहले अल्लाह की अमानत में एक गाय की बछिया छोड़ा था, जाओ फला जंगल में जाकर ये बात अर्ज करना। वो बेटा जंगल में उसी जगह गया, वहां जाकर दुआ करने लगा। वहां कुछ काम नहीं आने वाली है, ये मकान काम नहीं आएगा, ये दुकान काम नहीं आएगी, ये दौलत काम नहीं आएगी। कब्र में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो आपकी और हमारी नेकियां काम आने वाली है। क्या बात है। तो जलसों में नेकियां होनी चाहिए और नेकी की नीयत से जलसा करवाना चाहिए। आप हजरात ने जिस तरह का माहौल बनाया है, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि आप यहाँ आ जाएं वहां आ जाएं, जो जहां है वहीं बैठे रहें। इस नीयत से बैठें कि मुझे कोई अपने बाप का जिक्र नहीं सुना रहा, मुझे रसूल पाक का जिक्र सुनाने आया है। बस इस नीयत से बैठे रहें। अगले बार से केशियर साहब लोग, मुफ्ती रहमान साहब किबला है, अगली मर्तबा जब भी जलसा करें सामने में औरतों के सामने पर्दा डाल दिया करें। ये महफिल यहाँ से पैगाम लोगों को जाना चाहिए कि इस्लाम सिखाता क्या है, मजहब इस्लाम बताता क्या है। कम से कम इतना कर दें कि औरतों को पर्दे में डाल दें, और औरत पर्दे में अच्छी लगती है, औरत पर्दे में खूबसूरत लगती है। आज मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा, औरतों की तादाद ज्यादा है, कोई उठकर बीच में न जाए। मैं बताऊंगा कि हुजूर ने फरमाया है जिस औरत के अंदर 4 तरह की चीजें पाई जाए, अल्लाह ताला कयामत के दिन उस औरत का हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाबो किताब के उस औरत को जन्नत अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं बस इस नीयत से बैठे कि हमें एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। अरे भाई बोलिए, मरना है कि नहीं मरना है? जरा हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग सोच रहे हैं कि हाँ एक न एक दिन जाना है दुनिया से। अरे देखो ये बाद में उठा रहा है। भाई कौन किस वक्त चला जाए कोई गारंटी नहीं है, मरना है कि नहीं? जी जी। एक बात सुनिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वो नेक है या गुनहगार है। नेक लोगों की मौत अलग तरह से होती है, गुनहगार को मौत अलग तरह से आती है। गुनहगार को जब मौत आती है तो हदीस में आया है कि जिस तरह एक बबूल के दरख्त के ऊपर कोई रेशमी कपड़ा रखकर खींच लिया जाए उसका पुर्जा अलग हो जाएगा, उसी तरीके से इंसान के जिस्म से रूह को निकाली जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुनहगार को मौत के वक्त इतनी तकलीफ होती है, सुनिएगा गौर से, जिंदा बकरी के बदन से, बकरी समझते हैं ना, जिंदा बकरी के जिस्म से खाल को खींच लिया जाए, उस बकरी को जितनी तकलीफ होगी उससे 70 गुना ज्यादा तकलीफ गुनहगार शख्स को मौत के वक्त होती है। अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा लगाएं, अगर कोई गुनाह करता है, कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता है, कोई अगर आवारागर्दी करता है, कोई अय्याशी करता है,